Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Science of Life. I'm Dr. Muhammad Yousaf, and I'm going to discuss endometrial cycle. We had discussed in the previous lecture the ovarian cycle. These two cycles collectively they comprise what is termed as female reproductive cycle, a female sexual cycle, or menstrual cycle. So we had discussed the ovarian cycle. And ovarian cycle, the hormone produced during ovarian cycle, they are responsible for this cycle. But before we can explain it, one hadith I would like to quote. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है, इज़ा अनफ़क़ल मुस्लिमो नफ़क़तन अला अहलिही व हुवा यहतसिबुहा कानत लहू सदक़ा। इज़ा अनफ़क़ल मुस्लिमो, जब कोई मुसलमान अपना माल खर्च करता है, इन्फाक, नफ़क़तन, नफ़क़ा कहते हैं, घर वालों को जो देते हैं उसको नफ़क़ा कहते हैं, नानो नफ़क़ा, अला अहलिही, अपने अहल के लिए नानो नफ़क़ा देता है, वह हुवा यहतसिबुहा, उसकी नीयत इत्तिसाब की, उसकी नीयत सवाब की होती है, कानत लहू सदक़ा, ये भी उसके लिए सदका है, ये घर वालों पर खर्च करना भी उसके लिए सदका है। ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जब कोई मोमिन अपने अहल व अयाल पर सवाब की नीयत से खर्च करे तो वो भी उसके हक में सदका है, उसका भी अजर और सवाब है अल्लाह के यहाँ। यानी अपने घर वालों पर खर्च करना भी सदका है। वैसे तो सदका का कॉन्सेप्ट तो ये ना कि लोगों पर, अल्लाह के बंदों को देना, नो डाउट वो सदका है, लेकिन अपने घर वालों पर भी ये अल्लाह का हुक्म समझकर, सवाब समझकर ये खर्च करेंगे, ये भी सदका। अल्लाह पाक इस पे भी अजर सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। So I'm going to discuss endometrial cycle, the changes which are taking place in the lining of the endometrium, internal lining of the uterus, associated with the variations in estrogen and progesterone produced during cyclic changes in ovaries. Ovarian cycle के दौरान जो there are variation in estrogen and progesterone, they cause the variations in the endometrium, and those changes are collectively known as endometrial cycle. This we have seen the diagram, that is ovarian hormones. Now we are concerned with this. We have talked about this, the role of FSH and LH here. These two hormones, FSH, LH, they are responsible for this, that is the ovarian cycle. Ovarian cycle in वजह से. Now the ovarian hormone which are produced due to these hormones, estradiol and progesterone. Estradiol is the powerful, the most potent and the most abundant estrogen produced in human beings. So these two hormones, estrogen and progesterone, there is only estrogen present in almost first half of the cycle, and second half में both hormones are present, or so they will affect the endometrium, and we are going to talk about those changes. We will discuss the phases of the endometrial cycle again for the description. It is a cycle. We can start from anywhere, but we conventionally we start the first phase after menstruation. When menstruation has occurred, bleeding हो चुकी है. Now the bleeding में we will see there is desquamation of the endometrium. Endometrium में thickening होती रहती है cycle में, and that thickened endometrium is shed in the endometrium, in the menstrual flow. So after that we are starting the new cycle again. So new cycle we are starting after the menstruation, and this first phase is known as the proliferative phase. मैं जरा सा वापस जाऊंगा, उसी डायग्राम पे जाऊंगा. This is menstruation. This period is mentioned here in this cycle as well. Menstruation, though it is the function of the endometrium, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए menstruation जब फीमेल में हो रही है उस वक्त हार्मोनल लेवल वेरी लो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, और स्लाइटली ये अब बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दिस नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट. FSH LH प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है, एंड अब हम शुरू कर रहे हैं तकरीबन यहाँ से. दिस विल बी द प्रोलिफरेटिव फेज हेयर. कब के ये चौथा पांचवां दिन होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का.
मेंस्ट्रुएशन का चौथे पांचवें दिन जब ब्लीडिंग तकरीबन स्टॉप होने वाली होती है फीमेल में नॉर्मल साइकिल में, वहां पे हम शुरू करेंगे, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रही है. सो नाउ अगेन आई गो टू सेम पेज. Proliferative phase is the estrogen phase, because in this phase only estrogen is acting in the, it is being produced from the follicular phase of the ovarian cycle. And then after that, after ovulation, when both the hormones estrogen and progesterone both are present, it has nothing to do with the ovulation. Ovulation का काम, ovulation तो हो गई है, वहां पे प्रोजेस्टेरॉन शुरू हो गया है, that will affect LH सर्ज या FSH सर्ज जो हमने देखी, इट हैज नथिंग टू डू विद द एंडोमेट्रियम. वो उन्होंने जो करना है वो ओवरीज में करना है, वो कर चुके हैं, ओवुलेशन कर चुकी हैं. यहां पे काम करना है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ने, ओवेरियन हार्मोन ने काम करना है. तो सेकंड फेज इज द progestational phase. It is known as the progesterone phase or the progestation phase, though both hormones are present. Estrogen proliferative phase, proliferation caused by the estrogen, that continues as well, but special changes are because of the progesterone, so it is also known as the progestational phase or secretory phase. Why secretory? These changes are known as secretory changes. The gland becomes actually secretory glands बन जाती हैं अब इस वक्त. पहले तो उससे पहले प्रोलिफरेशन में ग्लैंड डेवलप करते हैं, वी विल सी इट, लेकिन दे डोंट सीक्रेट, देयर आर नो सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, बट हियर प्रोजेस्टेरॉन कॉजेज सीक्रेटरी चेंजेस इन द ग्लैंड्स एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सीक्रेटरी फेज. और उसके बाद जब दोनों हार्मोन खत्म हो जाएंगे, वो डायग्राम पिछली वाली याद रखें, दोनों हार्मोन जब फॉल कर जाएंगे, दैट इज द, this will result into the total absence of both the hormone. Corpus luteum will involute. उस फेज में हम जो इन्वोल्यूशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम जब होगा तो बोथ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन विल बी एब्सेंट, सो दैट विल अफेक्ट, दैट इज द कॉज ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल फेज और एक्चुअल मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग स्टार्ट. इसको हम एक्सप्लेन करना है, दीज थ्री फेजेस ऑफ द एंडोमेट्रियल साइकिल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. ये रफली द यूट्राइन वॉल है, दिस इज मायोमेट्रियम, उसमें से ब्लड वेसल ऐसे गुजर कर आ रहे हैं. वी हैव नथिंग टू डू विद द डिटेल्स ऑफ दिस सर्कुलेशन, वी आर कंसर्न विद ओनली दिस पार्ट, इंटरनल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. ये ब्लड वेसल कैसे गुजर रहे हैं, मायोमेट्रियम का क्या, वी आर नॉट कंसर्न विद इट. वी विल बी कंसर्न विद दिस व्हेन वी डिस्कस द यूट्राइन कंट्रैक्शन, उसकी बात करेंगे, वहां पे ब्लड वेसल का जिक्र करेंगे, उसका क्या रोल है यूट्राइन कंट्रैक्शन में. हियर वी आर restricted to the endometrium internal lining, which comprises of blood vessels are also there, glands are also there, there is epithelium over it, and there are many cells in the endometrium. So we will talk about this endometrium की changes की हम बात करें, nothing to do with the myometrium, uterus के साथ और कोई ताल्लुक यहाँ पे नहीं है. Now the first phase, which is known as the proliferative phase, ये कब शुरू किया हमने, at the end of menstruation, bleeding खत्म हो चुकी है. All the previous cycle endometrium has been lost in the menstrual flow. इस bleeding में जा चुकी है into the menstrual flow, menstruation में जा चुकी है. And at the beginning of this cycle, after menstruation, endometrium is completely desquamated, सारा loss हो गया, shedding हो चुकी है. And the only a thin layer of endometrial stromal cells are left. ये जो पीछे thick हमने देखी है endometrium, whole of this has been shed. ये मैं फिर वापस जाके आपको समझाने के लिए, this whole of the endometrium has been shed, only very thin layers of the endometrial cell will be present here in यहाँ पे base पे मौजूद होगी. So only a thin layer of endometrial stromal cells are left. Now ovaries में, now there is onset of production of estrogen. अब estrogen क्या करेगी, epithelial cells are present only in the remaining, हाँ इस साइकिल के शुरू में epithelial cells are present only in the remaining deeper portion of the crypts and endometrial gland. जो gland छोटे छोटे रह गए हैं उनके epithelial cells रह गए हैं, बाकी तो stromal cells, epithelium shed हो गई है, वो desquamated होगी, ऊपर लफ्ज लिखा हुआ है, desquamated हो गई है, shed हो गई है. epithelial cells जो रह गए हैं वो glandular cells, जो कटे हुए gland लाइन थोड़े रह गए हैं उनके glandular cells हैं थोड़े थोड़े, बाकी दो stromal cells are there. Now the follicular phase वहां पे शुरू हो चुकी है in the ovaries, और उसमें follicular phase में there is onset of secretion of estrogen. Estrogen शुरू हो गया, that estrogen will affect this desquamated epithelium in the form of proliferation of all the remaining
एंडोमेट्रियम, जो स्ट्रोमल सेल रह गए हैं दे विल प्रोलिफरेट, एपिथेलियल सेल जो रह गए हैं दे विल प्रोलिफरेट, ग्लैंडुलर सेल विल प्रोलिफरेट, ब्लड वेसल जो रह गए हैं दे विल प्रोलिफरेट, ये सारा काम होगा. So this will cause the estrogen is responsible for this proliferation phase of the endometrial cycle. और उसमें क्या कुछ होता है, this is the proliferative phase. This is menstrual phase. Menstruation में this has been shed, ये shed हो गया. Now this यहाँ से शुरू कर चुके हैं. So at the beginning of this, so there is proliferation, thickening शुरू हो चुकी है. ये thin थी, only basal थोड़े थोड़े crypts of the glands were left, epithelial cell. Now ये proliferate करेगी, thick होती जाएगी. Proliferative phase जितने दिन उसकी duration हम देखते हैं. So proliferative phase about 11 days. ये 11 days और ये कब शुरू हुए, चौथे पांचवें दिन. 11 डेज के बाद तकरीबन 11 प्लस दोज 4 विल बी 15 डेज, वहां ओव्यूलेशन होगी. देन दी ल्यूटियल फेज विल स्टार्ट. ल्यूटियल फेज में दोनों हार्मोन आएंगे तो बोथ विल कॉज दी सेक्रेटरी चेंज. और उसके बाद जब वो खत्म हो जाएंगे, इन्वोल्यूशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, तो मेंस्ट्रुअल फेज 5 डेज तक तकरीबन होगी. तो 11 12 ये 13 और 5 ये 28 डेज पूरे किए हुए एवरेज वाले. सो दी प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा, ईस्ट्रोजन from the follicular phase, this causes what, मैंने गिन दिया है. This causes the proliferation of the stromal cells, जो रह गए endometrium के cell, they will proliferate, endometrium will be thickened, and the proliferation of the epithelial cell जो भी वहां पे available हैं, they will proliferate. Re-epithelialization of the endometrium will occur, epithelium दोबारा पैदा होगी, and their re-epithelialization will occur in 4 to 7 days after the beginning of menstruation. वो 4-5 दिन menstruation हो गए, अगले 2 या 3 दिन में it will be re-epithelialized because of the action of this estrogen. Estrogen इसको re-epithelize करेगा, new epithelium develop करेगी from the remaining epithelial cells. And the growth of the glands and blood vessel, पहले मैं गिन चुका हूँ. Glandular glands will also grow, blood vessel will also grow. वो भी shed हुए थे ना. There will be necrosis of the blood vessel. हम आखिर में देखेंगे menstruation में necrosis of the blood vessel भी they were lost in the menstrual flow. So new blood vessel will also proliferate, they will develop. So growth of the glands, growth of the blood vessel. So these are all what we term as the proliferative phase. Increase in the thickness of the endometrium, और कितनी cervical glands and other endometrial glands as well as produce things of the mucus. ये endometrium में changes हो रही है. Cervix और बाकी भी जो ग्लैंड्स मौजूद हैं, देयर इज सम सिक्रीशन ऑफ दी ड्यूरिंग दिस साइकिल. सर्वाइकल ग्लैंड्स जो सर्विक्स के सेल्स हैं, ग्लैंड्स हैं यूट्रस के, दे प्रोड्यूस म्यूकस, और वो स्ट्रिंग्स ऑफ द म्यूकस प्रोड्यूस होते हैं. वो स्ट्रिंग सर्विक्स में ऐसे अरेंज होते हैं कि उनके दरमियान से स्पर्म, दे फैसिलिटेट दी मूवमेंट ऑफ द स्पर्म थ्रू दी स्ट्रिंग्स. ये जो स्टेम गंद हैं, सो सर्वाइकल ग्लैंड एंड अदर एंडोमेट्रियल ग्लैंड एज वेल, दे प्रोड्यूस स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूकस, जो उसमें प्लग किया होता है उनको म्यूकस को. थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम, ये सारे काम होने के बाद थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम जो डायग्राम में हमने देखी, इट रीचेस टू 3 to 5 मिलीमीटर टू टिल द एंड ऑफ द ओव्यूलेशन. जहां पे ओव्यूलेशन होगी, जहां पे अगली फेज स्टार्ट होगी, ओव्यूलेशन तो ओवरीज में होगी. एंड ऑफ दिस ईस्ट्रोजन फेज, जब यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन भी आ जाएगी, थिकनेस अचीव्ड ड्यूरिंग दिस प्रोलिफरेटिव फेज इज 3 to 5 मिलीमीटर. ये है प्रोलिफरेटिव फेज. दिस इज ईस्ट्रोजन फेज. इसलिए कहते हैं ऑल दीज चेंजेस आर ड्यू टू ईस्ट्रोजन व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ओवरीज ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज ऑफ द ओवेरियन साइकिल. सो 1 सिक्रेटरी, हमने प्रोलिफरेटिव फेज, ईस्ट्रोजन फेज डिस्कस. नाउ वहां पे ओवरीज में ओव्यूलेशन हो चुकी है, अब दोनों हार्मोन आने लग गए. ईस्ट्रोजन तो पहले से आ रही है, अब प्रोजेस्टेरॉन ऐड हो गई है. So there will be occurs after ovulation, वहाँ पे ovulation हो गया, and the corpus luteum is being formed, and that starts the production of both hormones. Estrogen पहले से पैदा हो रही थी, now progesterone is added here. Estrogen continues its proliferative changes. वो जो पिछली स्लाइड में हमने proliferation देखी, वो that will continue. Estrogen मौजूद है, वो अपना काम करते रहेगी. Further thickness, further stromal cell proliferation, glandular development, blood vascular development, etc., that will occur. But special changes जो होंगी, those will be progestational or secretory changes. Progesterone brings about the additional changes in the endometrium, जिनको हम secretory changes कहते हैं, उनको हम लिस्ट करते हैं. What are those additional changes? ये तो अब दिखाने के लिए कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बोथ आर प्रेजेंट, दोबारा ये डायग्राम आ गई है. अब ये इस वक्त हो रहा है, ये एक ओवरीज में ये काम हो रहा है इस दौरान में ओव्यूलेशन के बाद. अब एंडोमेट्रियम पे ये प्रोजेस्टेशनल फेज चल रही है. Secretory change, progesterone causes what?
It causes marked swelling and secretory development, जिसको हम swelling of the cell. Most of the cells, stromal cells especially, they swell up and there is deposition of the nutrients in the stromal cell. This is very important. ये सारा काम किस लिए हो रहा है? अगर प्रेगनेंसी हो, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, that fertilized ovum has to embedded in this thickened endometrium. उसने अर्ली न्यूट्रिशन इन सेल से लेनी है. So these cells are growing under the effect of progesterone. उनका साइज भी बड़ा हो रहा है, उनमें न्यूट्रिएंट्स जमा हो रहे हैं. तो उसको हम जब एक्चुअल प्रेगनेंसी हो जाती है तो इसी को हम डिसिडुआ सेल्स कहने लगते हैं. लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर डिपॉजिटेड हियर. लेकिन सो ग्लैंड ग्रो मोर एंड बिकम टार्चुअस. ये तो पहले स्वेलिंग ऑफ द सेल्स है. ग्लैंड्स भी ज्यादा ग्रो कर गए, प्रोलिफरेशन तो कंटिन्यू कर दिए, बट दे बिकम टार्चुअस. स्ट्रेट नहीं रहते, उनकी टार्चुअसिटी आ जाती है. तो दे बिकम टार्चुअस. अपीयरेंस ऑफ द सिक्रेटरी सब्सटेंसेस इन द ग्लैंडुलर सेल्स. पहली फेज में ग्लैंड डेवलप कर रहा था, बट देयर वाज नो सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स इन द ग्लैंडुलर सेल्स. प्रोजेस्टेरोन कॉजेज द अपीयरेंस ऑफ दोज सिक्रेटरी ग्रैन्यूल जो सिक्रीट होने हैं, उसको यूट्राइन मिल्क कहते हैं. ये ग्लैंडुलर सिक्रेशन को यूट्राइन मिल्क कहते हैं. अर्ली न्यूट्रिशन ऑफ द एम्ब्रियो बिफोर इम्प्लांटेशन इसी ग्लैंडुलर सिक्रेशन से होती है. वो आपको आइडिया तो होगा कि वो जो फर्टिलाइज्ड ओवम यूट्रस में आता है, दैट रिमेन्स अनइम्प्लांटेड फॉर 2 to 3 days. तो उस दौरान उसको न्यूट्रिशन कहां से आएगी? वन ऑफ द न्यूट्रिशन इज दिस ग्लैंडुलर सिक्रेशन. सो अपीयरेंस ऑफ द सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स occurs here in the glandular cells. Then deposition of lipids and glycogen and in the stromal cell, जो पहले मैं बोल चुका हूं. This is the decidua. यही डिसिडुआ बनेगा अगर प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है. So there deposition of lipids, glycogen, nutrients are being deposited in the stromal cells. So blood vessel grow further. वो पहले भी ग्रो कर रहे थे and they also become tortuous. ग्लैंड की तरह वो भी tortuous हो जाते हैं. So thickness of the endometrium, ये जो ग्रोथ हो गया है, thickness तकरीबन डबल हो जाएगी. It will be 6 to 8 millimeter ये at the end of this phase. अब ये progestational phase के बाद endometrium is thickened. अब उस डायग्राम को दोबारा याद रख ले. It has thickened double, उससे डबल हो चुकी है. This is ये इतनी थी, अब ये उससे और डबल हो चुकी है. तो सिक्रेटरी फेज ये तकरीबन 12 दिन तक होती है. यही आपको पता है 12 days is the lifespan of the corpus luteum. अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, कार्पस ल्यूटियम इन्वॉल्यूट्स आफ्टर 12 days. 12 दिन तक वो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन पैदा करता रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है. जब वो खत्म हो जाएगा तो बोथ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन विल बिकम एब्सेंट. वो नहीं होंगे तो फिर ऑल दीज विल बी रिवर्स्ड और रिवर्टेड बैक. वो रिवर्टेड बैक को देखेंगे. मेंस्ट्रुअल फेज विल स्टार्ट. वगले सिक्रेटरी फेज की और कुछ बातें बाकी हैं. एंडोमेट्रियम इज नाउ वेल प्रिपेयर्ड फॉर इम्प्लांटेशन. और ये सारा काम किस लिए हुआ है? इम्प्लांटेशन के लिए. जो फर्टिलाइज्ड ओवम अगर ट्रेवल करके आता है इनटू फ्लोपियन ट्यूब, जब यूट्रस में दाखिल होता है, पहले शुरू में 1-2 दिन तो यूट्राइन मिल्क सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड काम करेगी और फिर इट विल बी इम्प्लांटेड. और ये जो थिकन एंडोमेट्रियम में ग्लाइकोजन एंड लिपिड एंड न्यूट्रिएंट्स जमा हो गए हैं, दे विल बी ट्रोफोब्लास्टिक डाइजेशन होगी. आपको पता है प्लेसेंटा जो बनता है, अर्ली ट्रोफोब्लास्टिक डाइजेशन होगी इसकी. So endometrial glands, they secrete uterine milk. I already explained, for nutrition of the fertilized ovum before implantation. Implantation से पहले वो कहाँ से लेगा? ये secretion of these glands जिसको हम uterine milk कहते हैं. So entry of the ovum 3 to 4 days after ovulation. Ovulation के बाद वहाँ fertilization होगी है. It will take 3 to 4 days जब ये uterus में दाखिल होगा. And it remains unimplanted for some time, then 7 to 9 days after ovulation implantation. 9th day पे implantation होगी, 8th day पे या 9th day के ovulation के बाद. और हमने लाइफ स्पैन कितना कहा था इसको? फर्टिलिटी पीरियड, इसका फर्टिलिटी पीरियड जो हो गया, फर्टिलाइज हो गया, तो कार्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन कितना था? 12 days. 12 days के बाद कार्पस ल्यूटियम विल इन्वॉल्यूट और मेंस्ट्रुएशन विल स्टार्ट. इस दौरान में अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो देन दिस कार्पस ल्यूटियम विल नॉट इन्वॉल्यूट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन एट द इम्प्लांटेशन साइट. जहां पे ये इम्प्लांट करेगा वहां पे ट्रोफोब्लास्ट डेवलप करेगा एंड ट्रोफोब्लास्ट विल प्रोड्यूस द ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन. सो इम्प्लांटेशन अकर ऑन ऑलमोस्ट 7 to 8-9 days. So endometrium contains large amount of nutrients here and of implantation अगर हो जाती है,
फर्टिलाइज ओवम हो जाता है. ट्रोफोब्लास्टिक डाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन आफ्टर इम्प्लांटेशन. ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स एट द इम्प्लांटेशन साइट कैन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब द स्टोमल सेल्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द एम्ब्रियो. अगर ये ना हो देन कार्पस ल्यूटियम मां तो इन्वॉल्यूट करेगा. अगर ये काम हो गया है तो हेयर देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ human chorionic gonadotropin and it will prevent the involution of the corpus luteum. उसको involute नहीं होने देगा. Corpus luteum will continue to produce hormones for months. प्रेगनेंसी के अर्ली मंथ में कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता रहता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. तो अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, दिस इज दी वो सिक्रेटरी चेंजेस, एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस, वी आर नॉट वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस. ये एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस है, पैथोलॉजी वालों का काम है. वो जब कहते हैं दिस इज द सिक्रेटरी, आप देखें ग्लैंड जो नजर आ रहे हैं दे आर टार्चुअस. दिस इज प्रोलिफरेटिव फेज, ग्लैंड डेवलप कर रहे हैं लेकिन टार्चुअसिटी नहीं है. और ये मेंस्ट्रुएशन के बाद दिस इज दी मेंसेस हो गए हैं तो दिस हैज बीन लॉस्ट, बेसमेंट मेम्ब्रेन से रह गई. सो मेंस्ट्रुअल फेज इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, तब मेंस्ट्रुएशन होगी ना. अगर प्रेगनेंसी होगी तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? बिकॉज दैट कार्पस ल्यूटियम विल नॉट इन्वॉल्यूट. ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन परसिस्ट करेंगे तो जब तक ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन मौजूद हो देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन. इसलिए प्रेगनेंसी में थ्रू आउट those 40 days 40 weeks of the pregnancy there are no menstruation. Amenorrhea होता है प्रेगनेंसी में, gestational amenorrhea. So if fertilization does not occur then कार्पस ल्यूटियम विल इन्वॉल्यूट ऑन इट्स आफ्टर दिस 12 days. उसकी लाइफ स्पैन 12 days है. 12 days के बाद जब इन्वॉल्यूट कर जाएगा, एब्सेंस ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन विल रिजल्ट एंड एब्सेंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन विल कॉज व्हाट? तो नेक्रोटिक चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम वाज ग्रोइंग, proliferating and developing when the estrogen progesterone were present. अब वो absent हो गए तो resolution will take place. They will become necrotic. Death of the tissues will occur. So shedding of the endometrium. This dead endometrium will be shed into the cavity of the uterus. उसके साथ कुछ blood भी निकलेगा, cell भी निकलेंगे, dead cell भी निकलेंगे. That is the menstrual flow. तो शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम दैट इज नोन एज शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम में क्या कोई लॉस हो रहा है? वो स्टोमल सेल भी शेडिंग हो रही है, ग्लैंड भी टूट रहे हैं, ब्लड वेसल भी टूट रहे हैं, और ऑल दिस इज शेड इनटू द कैविटी ऑफ द यूट्रस. और यूट्रस में जो भी चीज रखेंगे, यूट्रस हैज प्रॉपर्टी टू एक्सपेल इट. इसको एक्सपेल करता है. इसलिए आपने शायद सुना होगा कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जब दिस फैमिली प्लानिंग के लिए रखते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, बाद औक़ात यूट्रस उनको भी बाहर फेंक देता है. यूट्रस की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर कोई चीज हो तो उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है. और फीटस को क्यों नहीं फेंकता? हाँ, फीटस को भी फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन उसको रोकने का तरीका है वो डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी में. So menstrual flow will occur because of the shedding of this endometrium, and menstrual phase में absence of progesterone and estrogen दोनों काम हो गए हैं. This causes decreased stimulation of the endometrium and regression of the thickness. वो 60% तो simply regress कर जाती है जो thick हुई थी. And then vasospasm of the endometrial blood vessel which were dilated because of the progesterone. Progesterone जब कम होगी they कंस्ट्रिक्ट होंगी तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा. ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, डेथ ऑफ द टिश्यूज विल अकर एंडोमेट्रियम, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा. सो एंडोमेट्रियल ब्लड वेसल दे गो इनटू स्पैज्म, वो कंस्ट्रिक्शन में चले जाते हैं ड्यू टू दी प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड अदर वेजोकंस्ट्रिक्टर्स. प्रोस्टाग्लैंडिन भी पैदा हो सकते हैं, वेजोकंस्ट्रिक्टर भी पैदा होते हैं, और बड़ी अहम बात है प्रोजेस्टेरॉन खुद भी वेजोडायलेटर है. वो वेजोडायलेटर खत्म होगी तो वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी. So vasospasm will cause the decreased blood flow, decreased nutrition that causes the regression of the cells. Necrosis of the blood vessel will occur. वो भी blood vessel भी necrotic हो जाती हैं. And the seepage of the blood, वो क्या होता है? ये सारे एंडोमेट्रियम में हो रहा है. यहाँ पे थोड़ा जहाँ ब्लड सीप किया, यहाँ पे ब्लड सीप किया, यहाँ पे ब्लड सीप किया. ये जो सीपेज ऑफ द ब्लड हो रही है अंडर दी इनसाइड दी थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम, तो ये दोनों मिलकर सेपरेट कर रहे हैं एंडोमेट्रियम को. So seepage of the blood in many areas, growth of these bloody areas or hemorrhagic areas वो मिल जाएंगे, and necrotic outer layer are separated from the basal layer and it is shed into the endometrium, and this is menstrual flow. ये blood loss होता है. So menstrual flow starts. अब ये जब shed हो गया into endometrium, uterus will expel it. Within 48 hours all the endometrium is desquamated. ये काम शुरू होने के within 2 days, अगले 2 days में all the endometrium is shed into the, और ये bleeding होती रहेगी. The necrotic tissue in the uterine cavity
ऑनसेट ऑफ द यूट्राइन कंट्रेक्टिलिटी, जैसे अभी मैंने कहा यूट्रस अपने अंदर कोई चीज नहीं छोड़ता, जो चीज हो उसको एक्सपेल करने की कोशिश करता है, फॉरेन बॉडी को जो भी हो, तो ये टिश्यू इसके अंदर है, यूट्रस विल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट विल कॉल द एक्सपेल्शन ऑफ दिस ऑल द कंटेंट्स, menstrual flow will occur, expulsion of the contents and the about 40 ml of the blood loss, about 40 ml of blood loss होता है, ब्लड सिर्फ 40 ml लॉस होता है, लेकिन उसके साथ इतना ज्यादा फ्लो इसलिए होता है, वो नेक्रोटिक टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, सेल्स हैं, वो डेब्रीज हैं, वो सारे मिलकर इतना होता है, एंड अबाउट 35 ml ऑफ द सीरस फ्लूइड, और फ्लूइड भी है, ब्लड के अलावा भी सीरस फ्लूइड भी लॉस होता है, और नेक्रोटिक मटेरियल भी, ऑल दैट इज द मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फेज में। तो अब इंपॉर्टेंट बात एक और आ गई है, ये मेंस्ट्रुएशन जो हो रही है, देर फाइब्रिनोलाइसिन इन दी नेक्रोटिक टिश्यू, ये जो डेड टिश्यू है इनमें फाइब्रिनोलाइसिन पैदा होती है, वो क्या चीज है, विच काजेज द लाइसिस ऑफ एनी क्लॉट, ये ब्लड जो कर रहा है ये क्लॉट करने की कोशिश तो करेगा, ब्लड जहां पे भी बाहर निकले वो क्लॉट करता है, आपने ब्लड में पढ़ा हुआ है, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड में टेक प्लेस, लेकिन इस क्लॉट, अगर ये क्लॉट करेगा तो फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो खराब होगा। नॉर्मली देर आर नो क्लॉट्स, अगर क्लॉट आते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो में, सम पैथोलॉजी इज देयर, नॉर्मली मेंस्ट्रुअल ब्लड शुड नॉट क्लॉट, ये क्लॉट नहीं करता बिकॉज ऑफ fibrinolysin in the necrotic tissue in the menstrual blood flow prevents the clotting, clotting नहीं होती, normally menstrual blood does not clot, excessive bleeding अगर हो जाए तो फिर में this fibrinolysin may not be sufficient, उतनी नहीं होगी, फिर अगर ज्यादा ब्लीड करती है कोई औरत तो there will be a clot, she may be passing clot in the menstrual flow, so the clots are usually signs of some abnormality, some pathology, clots pass करते हैं तो she should consult the doctor. After 4 to 7 days, new cycle will operate. Now ये menstruation हो चुकी है, then the endometrium has been desquamated, जहां से हमने शुरू किया था वहां पे दोबारा पहुंच जाए, after 4 to 7 days ये bleeding 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, maximum 7 days, किसी औरत में इससे ज्यादा हो जाता है, तो this will be will occur. So this is the uterine wall, this thickened endometrium has been shed, और फिर basal layers वो रह गए हैं इसको, so this is how the endometrial cycle takes place. कुछ important बातें इसमें और भी रह गई हैं। ल्यूकोरिया ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ल्यूकोरिया वो डिजीज नहीं है जो हकीमों वाली डिजीज है, कहते हैं औरत को ल्यूकोरिया हो गया, वो ल्यूकोरिया जो आमतौर पर हकीम बयान करते हैं, दैट इज द पैसेज ऑफ वाइट डिस्चार्ज को वो ल्यूकोरिया कहते हैं, हम ल्यूकोरिया बोल रहे हैं पैसेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स, फ्लो ऑफ द Leucorrhea, flow of leukocytes, large number of leukocytes are passed into this menstrual blood. Leukocyte क्या होते हैं, WBCs, white blood cells, neutrophils, so large number of this will be, ये नेक्रोटिक टिश्यू है, आपने ब्लड उसमें पड़ा हुआ है, जहां पे भी टिश्यू डिजेनरेशन हो, डैमेज हो, लॉट ऑफ कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस व्हिच विल अट्रैक्ट द ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो वहां पे वो रश करते हैं, तो कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस इन द नेक्रोटिक टिश्यू, लार्ज नंबर ऑफ WBCs दे आर पास्ड इनटू मेंस्ट्रुअल फ्लो, वो वहां पे अट्रैक्शन होती है उनकी, एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो में WBC पास करते हैं, इनका रोल क्या है, दे ये तो होल ऑफ द एंडोमेट्रियम हैज बीन शेड, ये तो रॉ सरफेस हो गया है, यहाँ पे तो खतरा है इन्फेक्शन का, उस इन्फेक्शन को अल्लाह पाक ने बचाने के लिए लार्ज नंबर ऑफ WBCs आर पास्ड ऑन इनटू द मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड द ल्यूकोरिया, फ्लो ऑफ द ल्यूकोसाइट्स को हम ल्यूकोरिया कहते हैं। यूट्रस इज रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन इन स्पाइट ऑफ डिन्यूडेड और डिस्क्वेमेटेड सरफेस ऑफ द एंडोमेट्रियम, वो इन्फेक्शन आमतौर पर नहीं होती, आप देखें ना हर एवरी मंथ देयर इज दी, ये रॉ सरफेस है लेकिन आमतौर पर इन्फेक्शन नहीं होती बिकॉज ऑफ दिस ल्यूकोरिया, बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स which are being passed into it. So that's the endometrial cycle, we have explained it, and so next हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, हम हमारी नेक्स्ट वीडियो तो फंक्शन, जनरल फंक्शन, ये तो कुछ फंक्शन हमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के एंडोमेट्रियम पर बात की, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की पूरी बॉडी पर इफेक्ट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, फंक्शंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हमारे अगले लेक्चर होंगे। होप यू आर फॉलोइंग मी, इफ़ यू हैव गॉट सम क्वेश्चंस तो उसमें कमेंट में डाल दें। एक और अहम बात, कभी कभी मैं ये तेज़ी में फ्लो में बोलते हुए आई में अटर सम ऐसा वर्ड कि जो नहीं था,
मिसाल के तौर पर इसी रिप्रोडक्शन के एक लेक्चर में जब मैं डिस्कस कर रहा था गेमेटोजेनेसिस, उसमें मैंने तेजी में फीमेल सेल कंटेन्स एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, लेकिन कभी कभी स्लिप ऑफ द टंग होता है, तो बी केयरफुल। तो मैंने वहां पे कर दें, कभी कभी ऐसे होता है, तो कमेंट्स में देख लिया करें। अगर मैं अपनी गलती कोई नोट करूंगा तो मैं कमेंट्स में लिख दूंगा, अगर ये उस वक्त होता है जब मैं अपलोड करने के बाद हो। सो होप टू सी यू इन नेक्स्ट, एंड इसको सब्सक्राइब करें और बाकी स्टूडेंट को शेयर भी करें, और तो क्या आपका भी सदका जारिया हो, लोगों का फायदा हो, और मेरा तरफ से भी सदका जारिया हो, ताकि थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।